He said, live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. खाई है हमने ये कसम, नहीं हंसेंगे आज हम, करनी है हमें हमारी कंपेयरिंग खत्म, चाहे खुशी हो या गम. It's time to call our first speaker, आलोक जी. ये किया है हमने इनसे वादा, नहीं बोलेंगे हम इनके संदर्भ में, बस श्रुति जी हम कुछ दिखा तो सकते हैं. हाँ कनिका जी. ये किसने आगे सही नहीं हो रहा. ट्रांजिशन सही. ट्रांजिशन ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे. साबु तो बताओ इधर से. सुना रहा प्यार प्यार ना रहा. So now let's welcome Alok ji to complete the story. ये खाली है काफी हद तक चल रहा है. बैटरी रेडिकल है. अब काम करना जब खत्म हो जाए ना. हेलो, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल. सब जाग रहे हैं क्या? अभी तो जागे हैं. चलो बढ़िया. Today's my topic is renting a motor vehicle, RCM and abatement, a topic, an article which was prepared by Ankit Modi and which will be presented by Alok. So here comes. Sir, what is renting a motor vehicle? Does anyone knows about it? What is renting a motor vehicle? Yes, Toshit ji. Phone रख दो अंदर. What is renting a motor vehicle? अच्छा. कुछ सही, बट अपना जो एक्ट है वो कुछ अलग वे में कहता है इसको. तो अपन देखते हैं एक्ट क्या कहता है. एज पर एक्ट, रेंटिंग अ मोटर व्हीकल मींस रेंटिंग अप एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स. ठीक है. तो इसमें डेफिनेशन थोड़ी सी क्रिटिकल है, समझ में नहीं आ रही. तो अपन आते हैं कि इसका टैक्सेबिलिटी प्रोविजन क्या है कि अपन रेंटिंग अ मोटर व्हीकल को टैक्स क्यों कर रहे हैं इन द सर्विस टैक्स एक्ट. So here comes clause F of section 66E, that is declared services, declares transfer of goods by means of hire, lease, licensing or in any such manner without transfer of right to use such goods as services. Thus, hiring of motor vehicle will be covered under the said clause as a declared service. Okay. So what is a motor vehicle? But it was not defined in the act, so we are taking a reference from the old law. That is the law which was prevailing before 2012. ठीक है. So as per that, cab means a motor cab or a maxi cab or any motor vehicle constructed to carry more than 12 passengers at a time. ठीक है. लेकिन ये जो definitions है ये कहीं दी भी नहीं है. तो अपन एक मोटर व्हीकल्स एक्ट है उधर से इनकी definitions लेते हैं तो समझते हैं कि इनकी definitions है क्या actually. So as per that act, motor cab under section 2 subsection 25 of that act means any motor vehicle, any motor cab
which is constructed or adapted to carry not more than 6 passengers at a time and excluding the driver. And in a similar way, a maxi cab under section 2 subsection 25 means any motor vehicle which is constructed to carry not more than 12 passengers at a time. ठीक है, and excluding the driver. And what is motor vehicle under section 2 subsection 28 means? It simply means any mechanically propelled vehicle which is adapted to use upon the roads, but it does not include a vehicle running on fixed rails like metro rails, trains, like this. And any motor vehicle which is used in factory premises, जो अपन factory में workers use करते हैं, like this. Or any other vehicle which are having less than 4 wheels, like auto rickshaws. ठीक है, अब ये सारी तो टैक्सेबिलिटी आ गई. अब किन की चीजों को सर्विस टैक्स ने छोड़ा है या फिर इंक्लूजन इन नेगेटिव लिस्ट है. तो क्लॉज ओ ऑफ सेक्शन 66 डी सर्विस टैक्स का कहता है कि ये सारी चीजें नेगेटिव लिस्ट में है. इसमें आता है स्टेज कैरेज. स्टेज कैरेज का मींस जो पॉइंट टू पॉइंट ट्रांजैक्शंस में काम लेती है, वो सारी चीजें जैसे बसेस हुई, डीटीसी की बसेस हुई, उनको नेगेटिव लिस्ट में डाल रखा है इन्होंने. और दूसरा वो मीटेड कैब्स. मीटेड कैब्स का मतलब है जैसे ओला कैब्स हुई, जिनका रूटिंग डायरेक्टली एक जीपीएस सिस्टम से है, जिनका हेडक्वार्टर से जो डायरेक्टली रूटेड होती है और जिनका जीपीएस कनेक्टिविटी होती है. ठीक है, और कुछ एग्जेम्पशंस दी हुई है एज पर मेगा एग्जेम्पशन जो सर्विस टैक्स में होते हैं. उसमें है कि एम्बुलेंसेस सर्विसेज जितनी भी प्रोवाइड करी जाती है हॉस्पिटल के द्वारा, वो सारी की सारी एग्जेम्प्टेड है. सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, टू देयर चिल्ड्रंस, टू देयर स्टूडेंट्स, to their staffs are also exempted, and services provided by the school or institutions or universities to the staff, students and children are also exempted from the service tax. And as per entry number 22 of mega exemption, if any motor vehicle which is meant to carry more than 12 passengers is given to an STU, that is state transport undertaking. अगर अपन ने कोई भी ऐसी चीज किसी भी STU को दे दी, सपोज अगर अपने पास बस है, अगर अपन ने बस उनको दे दी तो भी इस पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा. और एनी मोटर व्हीकल और एनी गुड्स व्हीकल व्हिच इज गिवन टू जीटीए, दैट इज गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, देन आल्सो सर्विस टैक्स विल बी नॉट बी लेवेबल. फिर आता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कैसे करता है. जैसे कि रवि सोच क्या है, हाँ, तो वो उसने कोई बस चलाई स्टूडेंट्स के आने जाने के लिए, तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा. स्कूल यूनिवर्सिटीज के अंदर ही है, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है ना, वो तो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं. एनी मोर क्वेश्चंस. ठीक है, अब अपन देखते हैं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कैसे अप्लाई होता है. तो इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या है, पहले ये बताएगा कोई मेरे को. सर्विस प्रोवाइड दी हुई है. अच्छा, सर्विस रेसिपिएंट को. ठीक है, तो इसमें होगा एक सर्विस प्रोवाइडर. सर्विस प्रोवाइडर में इसमें डेफिनेशन गिवन है कि सर्विस प्रोवाइडर कौन होना चाहिए तभी आरसीएम लगेगा. सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए एक इंडिविजुअल या फिर प्रोप्राइटरशिप और इन पार्टनरशिप or an AOP or an LLP which is residing or which is in taxable territory of India. ठीक है, तो अगर वो सर्विस प्रोवाइडर इस चीजों में फॉल होता है तो ही आरसीएम लगता है. एंड द सिमिलर केस सर्विस रिसीवर शुड बी एनी बिजनेस एंटिटी which is registered as in a body corporate which is not an LLP and which is also in taxable territory of India and having not a similar line of business. मतलब जो बिजनेस होना चाहिए दोनों जनों का वो सेम ही होना चाहिए. अगर बिजनेस सेम हुआ तो आरसीएम के लॉज या प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे. ठीक है, तो हाउ आरसीएम इज एप्लीकेबल. तो अपन ने पहले बात मोटर व्हीकल ली, तो मोटर व्हीकल में अपन ने पहले लिया गुड्स व्हीकल और एक पैसेंजर व्हीकल. अगर गुड्स व्हीकल है तो अपन ने देखा कि इसको एग्जेम्पशन अवेलेबल है अगर गुड्स व्हीकल को अपन ने रेंट या हायर दे दिया किसी भी जीटीए को. अगर अपन ने जीटीए को दे दिया तो एग्जेम्पशन अवेलेबल हो गई. अब अगर एग्जेम्पशन अवेलेबल हो गई तो उसको अबेटमेंट अवेलेबल नहीं होगी. ठीक है, अबेटमेंट भी अवेलेबल नहीं होगी और आरसीएम के प्रोविजंस भी इस पे अप्लाई नहीं होंगे. ठीक है, अब पैसेंजर व्हीकल की बारी आती है. पैसेंजर व्हीकल में अपन ने देखा मैक्सी कैब या मोटर व्हीकल. मैक्सी कैब और मोटर व्हीकल अगर अपन ने इसको एसटीयू को दे दिया, एसटीयू को अपन ने दे दिया नॉट मोर देन 12 पैसेंजर्स, देन इसको एग्जेम्पशन अवेलेबल है एंट्री नंबर 22 ऑफ सर्विस टैक्स के अंदर. ठीक है, तो इसके अंदर अपन को एग्जेम्पशन मिल जाएगी. तो अबेटमेंट की कोई दिक्कत ही नहीं है और आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी. ठीक है, एंड दूसरी बात ये मोटर कैब व्हिच इज कैरिंग लेस देन 6 पैसेंजर्स, तो इनको एग्जेम्पशन तो है नहीं कोई, इनको एग्जेम्पशन नहीं है. इनको अबेटमेंट अवेलेबल है 60%. लेकिन अबेटमेंट के लिए सर्विस टैक्स में ये कहा गया है कि जो आपको अगर आपने सैनुअल क्रेडिट जो मैं अगली स्लाइड में लेके आने वाला हूं, अगर आपने सैनुअल क्रेडिट इनपुट नहीं लिया तो ही आपको अबेटमेंट अवेलेबल होगा. ठीक है, लेकिन अब अपन को अबेटमेंट मिल गया तो आरसीएम कैसे अप्लाई होगा. अगर अपन ने अबेटमेंट अवेल करा तो सर्विस रिसीवेबल को 100% टैक्स पे करना पड़ेगा.
और अगर अपन ने अबेटमेंट अवेलेबल नहीं करा तो सर्विस प्रोवाइडर 60% टैक्स देगा और रिसीवर 40% टैक्स देगा। एनी डाउट्स? ठीक है, अवेलमेंट ऑफ सैंडविच क्रेडिट कैसे होगा? पहली बात तो सैंडविच क्रेडिट केवल और केवल इनपुट कैपिटल गुड्स पे ही मिलेगा जो टैक्सेबल सर्विसेज के अंदर काम आ रहे हैं और जिसका सर्विस प्रोवाइडर पे नहीं लिया हुआ। मतलब आप इनपुट तभी ले पाओगे जब सर्विस प्रोवाइडर ने इनपुट नहीं लिया हुआ है, तो ही आप सैंडविच क्रेडिट ले सकते हो। और दूसरी बात, अगर आप दोनों का बिजनेस सेम है तो आप इस तरीके से इनका सैंडविच क्रेडिट ले सकते हो। 100% ऑफ सैंडविच क्रेडिट ऑफ सर्विस टैक्स इफ प्रोवाइडर इज पेइंग सर्विस टैक्स एंड 40% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट दैट इज अबेटेड वैल्यू, और अप टू 40% ऑफ सैंडविच क्रेडिट ऑफ सर्विस टैक्स इफ प्रोवाइडर इज पेइंग सर्विस टैक्स ऑन द फुल वैल्यू। ठीक है, लेकिन अब बात ये आती है कि अपनी जेब में से आखिरकार जाएगा क्या? दोनों ही सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर। तो अपन पहले सर्विस प्रोवाइडर का देखते हैं। अगर सर्विस प्रोवाइडर है और आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी है और उसने सैंडविच क्रेडिट का अवेलमेंट ले लिया है, अगर उसने सैंडविच क्रेडिट ले लिया तो अबेटमेंट नहीं मिलेगा उसको। तो अगर मान लो अपनी सर्विस टैक्स की रेट है 14.5%, तो उसको डायरेक्टली 60% का अबेटमेंट नहीं मिलेगा और आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी है तो 60% टैक्स सर्विस प्रोवाइडर पे करेगा, तो उसका टैक्स बनता है 14.5% मल्टीप्लाई बाय 60%, दैट कम्स टू 8.7%। ठीक है, और अगर उसने सैंडविच क्रेडिट का अवेलमेंट नहीं लिया तो उसको अबेटमेंट मिल जाएगा। अबेटमेंट कितना? 60%। अगर उसको अबेटमेंट मिल गया 60%, उसकी लायबिलिटी भी 60% थी, तो उसको कोई भी पैसा चुकाने की जरूरत नहीं है, तो मतलब उसको कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात आती है अगर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती, अगर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती और सैंडविच क्रेडिट अवेल करा है उसने, तो उसको डायरेक्टली 14.5% का सर्विस टैक्स देना पे करना पड़ेगा। 100% लायबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर की होगी। अगर दूसरा केस है, अगर उसने सैंडविच क्रेडिट का अवेलमेंट नहीं करा तो उसको 60% का अबेटमेंट मिल जाएगा, तो इस तरह से उसकी सर्विस टैक्स की लायबिलिटी देगी 5.8%। ठीक है, और दूसरी बात है सर्विस रिसीवर। सिंपल सी बात है, सर्विस रिसीवर पे सैंडविच क्रेडिट का कोई भी रोल नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आरसीएम अप्लाई हो रहा है उस पर, तो उसको डायरेक्टली 40% ऑफ सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, अगर आरसीएम अप्लाई नहीं हो रहा तो उसको कुछ नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन? प्राची जी, आपको कोई क्वेश्चन है? हाँ, सैंडविच क्रेडिट नॉट अवेल वाले केस में जो ये है ना, आरसीएम नॉट एप्लीकेबल, हाँ, आपने बोला कितना परसेंट लगेगा? मतलब अबेटमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अबेटमेंट मिलेगी 60%, तो 14.5% माइनस 60% कर देंगे तो 40% उसको पे करना पड़ जाएगा पूरा का पूरा। विस्मित जी, आपको भी क्वेश्चन था? मतलब सर्विस प्रोवाइडर वाला समझ में नहीं आया। सर्विस प्रोवाइडर के अंदर सिंपल सा केस ये है कि अगर उसने सैंडविच क्रेडिट का अवेलमेंट ले लिया तो उसको अबेटमेंट नहीं मिलेगा। अबेटमेंट नहीं मिलेगा तो ही विल बी लायबल टू 100% टैक्स। ठीक है, अगर मान लो 100 रुपए का सर्विस टैक्स बन रहा है, उसने सैंडविच क्रेडिट ले लिया तो 100 रुपए का टैक्स बन जाएगा। अब इसमें दो बातें हैं कि आरसीएम अप्लाई हो रहा है, आरसीएम अप्लाई नहीं हो रहा। अगर आरसीएम अप्लाई हो रहा है तो उसको 60% नहीं पे करना पड़ेगा, तो 60 रुपए पे कर देगा। और अगर आरसीएम अप्लाई नहीं हो रहा तो उसको 100% टैक्स पे करना पड़ेगा, तो 100 रुपीज पे कर देगा। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्विज है, जितने मैंने प्रोविजंस बनाए उनको ग्रेस्प करने के लिए। तो अपना सर्विस प्रोवाइडर है पैप्स कैब सर्विसेज पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म है। रिसीवर है टैब इंडिया। एक्टिविटी ऑफ सर्विस रिसीवर है नेचुरल स्टोन प्रोसेसर्स। तो अब प्राची जी बताएंगे कि आरसीएम अप्लाई होगा या नहीं होगा। प्राची जी सही कहा, आरसीएम अप्लाई होगा। ठीक है, दूसरा केस है अपने पास मैसर्स फर्स्ट प्रोप्राइटरशिप कंसर्न एक, दूसरी सर्विस रिसीवर है आर सुगानी एसोसिएट्स। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ सर्विस रिसीवर है सीए फर्म, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म है। तो इसमें अब विस्मित जी बताएंगे कि आरसीएम अप्लाई होगा या नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है, बिल्कुल सही। दूसरा है अपने पास कंपनी है अफलातून एंड कंपनी, जो एक पार्टनरशिप फर्म है। दूसरा सर्विस रिसीवर है फर्जी बैंक लिमिटेड। एक्टिविटी ऑफ सर्विस रिसीवर बैंक सर्विसेज। तो अतुल जी आंसर देंगे कि आरसीएम अप्लाई होगा या नहीं होगा। हाँ, क्यों होगा? हाँ, और जो प्रोवाइडर है वो, हाँ ठीक है, सही कहा बिल्कुल। दूसरा केस है मनोज अग्रवाल एचयूएफ। ठीक है, रिसीवर है ज़ॉम्बी ट्रेवल्स लिमिटेड। सर्विस रिसीवर की एक्टिविटी है रेंट कैब सर्विसेज। तो मुकुंद जी बताएंगे कि सर्विस टैक्स लगेगा, आरसीएम अप्लाई होगा या नहीं होगा। होगा, क्यों होगा? नहीं होगा। क्या हो गया, क्यों नहीं होगा? तो मैंने सुना नहीं था। क्या सुना नहीं था मैंने। तो क्यों नहीं सुना था?
तो ईवाई से अपने वेंकटेश जी हैं वो बताएंगे होगा नहीं होगा। डायरेक्टली ईवाई से यहाँ पर आप ये बिटवीनस के लिए आए लंच करने आया। क्या वहां से निकाल दिया गया ऐसा कुछ मे बी ऑफ मिलता है। और मिलता है क्या? हाँ तो इसका आंसर इसमें होगा क्योंकि ये HUF है तो और इसमें जो ये बॉडी कॉर्पोरेट है और इन दोनों की जो सर्विसेज जो रेंडर्ड तो आरसी में अप्लाई होगा। होगा। ठीक है वेंकटेश जी ईवाई ठीक है। और दूसरा अपन कुणाल जी बताएंगे आरसी में अप्लाई होगा नहीं होगा। नहीं होगा, दोनों की एक्टिविटीज सेम है। एक्टिविटी जब सेम होती है तो आरसी की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। नहीं बट मनोज अग्रवाल HUF पहली बात ये आ गई ना दोनों की एक्टिविटी सेम है। लास्ट क्वेश्चन है सर्विस प्रोवाइडर है वे टू हेल्थ लिमिटेड। पिछले वाले में पता था कि दोनों मनोज अग्रवाल वही तो पता क्या चल रहा है। हाँ इसी में मतलब मनोज को नहीं कहाँ से बैंक सर्विसेज अपना सर्विस प्रोवाइडर तो डीम्ड है ना कि अपन उसको रेंट कैब सर्विस देंगे वो तो डीम्ड ही है। प्रोवाइडर है वे टू हेल्थ लिमिटेड, रिसीवर है केजीपीएल, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ सर्विस रिसीवर है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉवल्स। तो इसमें रजत परनामी जी बताएंगे कि क्या रहा। परनामी में आया जलानी जी क्यों होगा? लिमिटेड कंपनी नहीं होगा। होगा। चलो रितु जी बताएंगे क्या होगा इसमें। नहीं होगा। क्यों? इसमें होगा। कंपनी और सेम जो सेम वर्क कर रहे हैं वो दोनों सेम। वर्क का सेम करें वे टू वो तो हेल्थ लिमिटेड तो रेंटिंग रेंट कैब सर्विस कर रही है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉवल्स अलग अलग। हाँ तो ये नहीं होगा इसमें बिकॉज दोनों की दोनों बॉडी का ऑपरेट है। अच्छा फर्स्ट वाला तो इट्स ऑल एक और है घूमना फिरना एलएलपी। सही है। सर्विस प्रोवाइडर है घूमना फिरना एलएलपी। सर्विस रिसीवर है ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी। कॉलिंग आ गया। एक्टिविटी ऑफ सर्विस रिसीवर है कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इसमें सोमेश जी बताएंगे कि आरसी में अप्लाई होगा नहीं होगा। मेरे ख्याल से नहीं होगा क्योंकि फॉरेन कंपनी हो गई रिसीवर। क्यों नहीं होगा? ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी है ब्रांड तो कंसोलिडेशन ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी का कंसल्टेशन तो इंडिया में होगा। हाँ रेफरेंस के टैक्सेबिलिटी तो इंडिया में आएगी ना उसकी। टैक्सेबिलिटी तो इंडिया में आएगी। इट विल बी पार्ट ऑफ अ टैक्सेबल टेरिटरी ओनली। टैक्सेबल टेरिटरी तो इंडिया में तो आएगी ना। टैक्स तो इंडिया में बनेगा उसका ब्रांच का। फॉरेन ब्रांच का टैक्स तो इंडिया में बनेगा ना। सो इसमें आरसी में अप्लाई होगा। सो दैट्स ऑल। सहयोग देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नहीं अच्छा था। हाँ that is metered cabs and that is exempted. No service tax will be levied on that. Ola. Metered cabs वो होती है या फिर उनके पर्पसली मीटर लगा हो जैसे कोलकाता और मुंबई मीटर लगा होता है या फिर उनमें जीपीएस सिस्टम अनेबल हो जो डायरेक्टली हेडक्वार्टर से टाइप हो जिनका वो exempted है। बिल में सर्विस नहीं लगा होता आरसी में प्रोविजन नहीं लगा होता सर्विस टैक्स लगा हुआ है केवल आरसी नहीं लगेगा।